Good morning, everybody. Myself, Dr. Meera Gupta, Professor and Head, Department of Physics at Government Dr. W. Patankar, Girls PG College, Durg. Today I am presenting a video lecture on the topic Types of the Transistors for BSc Final Year Students, Paper 2nd, Unit 3rd. Now we come to start the topic. First of all, we see what are the contents of the video lecture. First, types of the transistor, then what are NPN type transistor, then mode of transistors, then their characterization, advantage and disadvantage, and their applications. Types of transistor. Transistors are basically classified into two types. First, bipolar junction transistor, then unipolar junction transistor. There are two types of bipolar transistors, NPN type transistors and PNP type transistor. Here we are discussing about the NPN transistor. One type consists of two N regions separated by a P region, NPN, and other type consists of two P regions separated by N region. The term bipolar refers to use of both holes and electrons as carriers in the transistor structure. बाइपोलर ट्रांजिस्टर का मतलब ये है कि जिसमें दोनों तरह के चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण जो है वो करंट फ्लो होती है, और ये दो तरह के हैं, एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर और पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर। इस वीडियो में हम एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर को डिस्कस करेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर डिस्कस किया था। अभी इसमें हम एनपीएन कॉमन बेस मोड कॉन्फ़िगरेशन को हम डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट आर एनपीएन ट्रांजिस्टर? The NPN transistor is a bipolar junction transistor. In an NPN transistor, the first letter N indicates a negatively charged layer of material and P indicates a positively charged layer. These transistors have a positive layer which is located in between two negative layers. These transistors comprise three terminals, namely base, collector and emitter, and these terminals connect the transistor to the circuit board. When the current flows through the NPN transistor, the transistor base terminal receives the electrical signal. The collector makes a stronger electric current than the one passing through the base, and the emitter passes this stronger current on the rest of the circuit. In this transistor, the current flows through the collector terminal to the emitter. Now, this is the symbol and block diagram of NPN transistor. This is block diagram of NPN transistor. जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें एक सेमीकंडक्टर चिप लेकर के उसके दोनों तरफ जो है वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर जो है वो डोप्ड होता है, और ये सेंटर जो है वो जो बेस जिसको हम बोलते हैं पी टाइप का होता है, और ये लाइटली डोप्ड होता है और बहुत थिन होता है। एक्चुअली में इसको बनाने के लिए हम दो पीएन जंक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं और इनको अपोजिट साइड में रखते हैं। एक ये पीएन जंक्शन हो गया और एक ये पीएन जंक्शन हो गया, और बीच वाला जो जंक्शन है वो कॉमन रहता है। तो और ये बेस जो है वो लाइटली डोप्ड होता है और थिन भी होता है, जिसके कारण इसमें चार्ज कैरियर्स जो होल्स होते हैं बहुत कम मात्रा में होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फर्स्ट टर्मिनल जो एन टाइप है इसको हम एमिटर नाम देते हैं, और दूसरे तरफ का जो एन टाइप का है इसको हमने कलेक्टर नाम दिया हुआ है, और बीच वाला जो है इसको हम बेस कहते हैं। तो एमिटर जो है वो एन टाइप का है, कलेक्टर भी एन टाइप का है, और ये सेंटर वाला बेस है जो कि पी टाइप का है। सिंबल में आप देख रहे हैं
कि इसमें सेंटर जो है ये बेस है, एक साइड ये एमीटर है और ये दूसरी तरफ कलेक्टर की लीड है। एमीटर पर चूंकि ये एन टाइप का है इसलिए एमीटर पर एरो जो है वो बाहर की तरफ, आउटर साइड में जो है वो बाहर की तरफ डायरेक्शन इसकी शो की जाती है, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन शो करता है। Then working of NPN type transistor. The circuit diagram of NPN type transistor is shown in the figure of next slide. The forward bias is applied across the emitter base junction and the reverse bias is applied across the collector base junction. The forward bias voltage BEV is small as compared to the reverse bias voltage BCB. The emitter of NPN transistor is heavily doped. When the forward bias is applied across the emitter, the majority charge carriers electrons move towards the base. This causes the emitter current IE. The electron enters into the p-type material and combines with the hole. Then the base of NPN transistor is lightly doped, due to which only a few electrons are combined and remaining constitutes the base current IB. This base current enters into the collector region. The reverse bias potential of the collector region applies the high attractive force on the electron reaching collector junction, thus attract or collect the electrons at the collector. The whole of emitter current is entered into the base. Thus, we can say that the emitter current is the sum of collector or the base current. Now, this is the block circuit diagram of PNP type transistor. इससे हम वर्किंग समझ सकते हैं। ये हमारा NPN टाइप ट्रांजिस्टर है जिसमें ये N टाइप जो है वो एमिटर है, इधर का N टाइप जो है वो कलेक्टर है और बीच का जो है ये बेस है। अब चूंकि N टाइप है एमिटर इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स में होंगे, कलेक्टर में भी इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स में होंगे और बेस जो है लाइटली डोप्ड है और थिन है इसलिए बहुत ही माइनॉरिटी में यहाँ पर होल्स होंगे। अब वर्किंग के लिए और सर्किट के लिए ये इनका बेसिक प्रिंसिपल है कि एमिटर और बेस के बीच का जो जंक्शन है ये ऑलवेज फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है और कलेक्टर और बेस के बीच का जंक्शन, यहाँ ध्यान ये देना है कि कलेक्टर और बेस के बीच का जंक्शन है वो हमेशा ही रिवर्स्ड बायस में होगा। चूंकि एमिटर का काम है चार्ज कैरियर्स को फॉरवर्ड बायस में उसको ले जाना, उनको एनर्जी दे करके आगे फ्लो करना, इसलिए एमिटर जो है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में रहेगा और कलेक्टर का काम है कि एमिटर से आने वाले चार्ज कैरियर्स को अपने तक अट्रैक्ट करना या कलेक्ट करना, इसलिए कलेक्टर जो है हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रिवर्स बायस में रहेगा जिससे कि एमिटर से आने वाले सारे चार्ज कैरियर्स जो हैं वो कलेक्टर तक आ सके और कलेक्टर उन्हें कलेक्ट करके आगे फ्लो कर सके। तो जैसा कि हम बोल रहे हैं एमिटर और बेस के बीच का जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा। तो देखिए इसमें हमको बायसिंग के लिए दो बैटरी की आवश्यकता होगी, एक है ये आपका फॉरवर्ड बायस के लिए और दूसरी ये बैटरी है आपकी रिवर्स बायस के लिए। तो एमिटर जो है ये बैटरी के निगेटिव से जुड़ेगा क्योंकि एन टाइप है और ये बेस जो है आपका इनपुट पर और आउटपुट पर दोनों तरफ कॉमन रहेगा। चूंकि ये 3 टर्मिनल डिवाइस है इसलिए इन 3 टर्मिनल में से किसी एक टर्मिनल को हमें कॉमन करना पड़ेगा जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों तरफ रहेगा। तो यहाँ पर हमने बेस को यदि कॉमन किया हुआ है तो इसकी वर्किंग हम समझ सकते हैं कि हमने एमिटर को फॉरवर्ड बायस में किया है और दूसरी बैटरी जो स्ट्रॉन्गर बैटरी है उससे हमने कलेक्टर को रिवर्स बायस में किया हुआ है जो कि बैटरी के प्लस से जुड़ा हुआ है और एमिटर जो है वो निगेटिव से जुड़ा हुआ है। जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में रखते हैं एमिटर को तो इसके जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब की एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है एक्सटर्नल वोल्टेज के कारण और वो सारे के सारे बेस तक पहुंच जाते हैं। बेस में बहुत माइनॉरिटी कैरियर्स में होल्स हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है होल से रिकम्बाइन हो जाते हैं। इसके बाद चूंकि आपका कलेक्टर जो है वो प्लस से जुड़ा हुआ है, बैटरी के प्लस से जुड़ा हुआ है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं एमिटर के कलेक्टर के वो सब के सब यहाँ पर
आकर के अट्रैक्ट हो जाएंगे और हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करने लग जाएंगे। बट इसकी डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की विपरीत दिशा में करंट की डायरेक्शन शो की जाती है। तो ये है इसका बेसिक प्रिंसिपल, जो कि सर्किट में कैसे हमको ट्रांजिस्टर को जोड़ना है। अब इस प्रिंसिपल को ही सभी ट्रांजिस्टर के लिए लागू किया जाता है कि आपका एक बार और सुन लीजिए कि आपका एमिटर और बेस के बीच का जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस में रहेगा और कलेक्टर और बेस के बीच का जंक्शन हमेशा ही रिवर्स बायस में रहेगा। ट्रांजिस्टर किसी भी टाइप का हो, चाहे वो पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर हो चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसी के आधार पर, इसी सिद्धांत, इसी प्रिंसिपल के आधार पर हम सिंबॉलिक सर्किट डायग्राम भी आगे बनाते हैं। अब डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मोड्स ऑफ द ट्रांजिस्टर, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको जो है 4 लीड चाहिए, क्योंकि 2 इनपुट के लिए चाहिए और 2 आउटपुट के लिए चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इन 3 लीड में से एमिटर, बेस और कलेक्टर, इन 3 लीड में से किसी एक को हम कॉमन कर सकते हैं। चाहे एमिटर को कॉमन करें, चाहे बेस को कॉमन करें या कलेक्टर को कॉमन करें। तो इस तरह से हम 3 तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर का कर सकते हैं और 3 तरह से ही उसको सर्किट में जोड़ सकते हैं। पहला हमने लिया है कॉमन बेस या सीबी मोड। अब इसमें कॉमन बेस सर्किट जब हम बनाएंगे तो उसमें हमारा करंट गेन क्या होगा, वोल्टेज गेन क्या होगा, ये हमने नीचे लिखा हुआ है। तो यदि कॉमन बेस मोड है तो नो करंट गेन बट वोल्टेज गेन। कॉमन कलेक्टर यदि है तो करंट गेन बट नो वोल्टेज गेन। यदि कॉमन एमिटर सर्किट हमने बनाया हुआ है तो इसमें करंट गेन और वोल्टेज गेन जो है वो दोनों ही हमें प्राप्त होते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर। कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम खींचते हैं ट्रांजिस्टर की तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी मेनली होती हैं। एक होती है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इनपुट क्वांटिटीज़ या रीडिंग्स पर खींचा जाता है। दूसरा है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आउटपुट की रीडिंग्स पर खींचा जाएगा। और तीसरा है करंट ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इनपुट करंट और आउटपुट करंट के बीच में खींचा जाता है। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ कॉमन बेस ऑफ ट्रांजिस्टर। तो हमने कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में, अब आप डायरेक्ट सर्किट से ही देख सकते हैं, ये हमारा सर्किट डायग्राम ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन सीबी मोड। ये ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये एमीटर है जिसमें एरो हमने बाहर की साइड लगाया हुआ है। ये कलेक्टर लीड है और हमने बेस को कॉमन किया है, जिसको हमने नीचे रखा हुआ है, जो कि इनपुट सर्किट पर भी जाएगा और आउटपुट सर्किट पर भी जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल जो हमने आपको बताया कि एमीटर जो है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा। चूँकि एमीटर एन टाइप का है इसलिए हमने बैटरी के निगेटिव से एमीटर जोड़ दिया है और बैटरी का पॉजिटिव जो है वो कॉमन बेस पर आ गया है। इस बैटरी के वोल्टेज को वैरी करने के लिए हमने ये पोटेंशियल डिवाइडर बनाया हुआ है, रियोस्टेट लगाया हुआ है, वेरिएबल रियोस्टेट लगाया हुआ है। इस रियोस्टेट के वेरिएबल पॉइंट से हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। वोल्ट मीटर को बैटरी के प्लस से प्लस और बैटरी के माइनस से माइनस जोड़ दिया। वोल्ट मीटर हमेशा बैटरी के पैरेलल जुड़ता है, क्योंकि ये 2 बिंदुओं का जो है वोल्टेज नापता है, इसलिए हमेशा ये पैरेलल में जुड़ता है। सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वोल्ट मीटर पैरेलल में ही जुड़ेगा। इसके बाद एमीटर चूँकि करंट नापता है, सर्किट की करंट नापता है, इसलिए मिलीमीटर जो है हमेशा वोल्ट मीटर के साथ सर्किट में आपका सीरीज में जुड़ता है। तो वोल्ट मीटर का नेगेटिव जो आ रहा है वो मिलीमीटर के नेगेटिव से जुड़ जाएगा और ये जो पॉजिटिव पॉइंट है वो एमीटर पर चला जाएगा। दूसरी बैटरी हमने ली है कलेक्टर को बायसिंग के लिए। चूँकि कलेक्टर हमारे साथ रिवर्स बायस में रहेगा, इसलिए इस बैटरी के पॉजिटिव को हमने कलेक्टर पर जोड़ा हुआ है और नेगेटिव आपका कॉमन आकर के बेस पे आ गया है। तो इस बैटरी का भी हमने पोटेंशियल डिवाइडर बना लिया है। बैटरी के प्लस से वोल्ट मीटर का प्लस, बैटरी के माइनस से वोल्ट मीटर का माइनस, और इधर बैटरी वोल्ट मीटर के प्लस को मिलीमीटर के प्लस से और जो माइनस है वो हमारा कलेक्टर पर आ गया। इस सर्किट
डायग्राम जो है ऐसा लगता है कि बहुत कठिन होता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब सर्किट का प्रिंसिपल आपको याद होगा, मालूम होगा, तो सर्किट बनाना बहुत आसान हो जाता है। प्रिंसिपल जैसा कि हमने आपको बताया, एमीटर फॉरवर्ड बायस में जुड़ेगा, कलेक्टर आपका रिवर्स बायस में जुड़ेगा, बेस को कॉमन किया है जो कि इनपुट पर भी गया है और आउटपुट पर भी गया है। तो ये चीज़ हमको हमेशा याद रखनी है। और सर्किट डायग्राम जब आप बनाएंगे या सर्किट टैकल करने के लिए जब आप सर्किट बनाएंगे, तो सर्किट जो है वो ट्रांजिस्टर से बनाना शुरू मत करिए, कनेक्शन करना ट्रांजिस्टर से ना शुरू करके बैटरी से करेंगे तो आपको आसान लगेगा। इस बैटरी के फॉरवर्ड बायस में एमीटर से जोड़ देना है, इस बैटरी को रिवर्स बायस में कलेक्टर से जोड़ देना है, और बेस को जो है वो इनपुट और आउटपुट पर कॉमन कर देना है। इधर के वोल्टेज को नापने के लिए इनपुट वोल्टेज हो गया आपका BEV, इनपुट करंट हो गया IE, आउटपुट वोल्टेज हो गया VCB यानी वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस, और यह है आपके IC करंट। तो दो इनपुट राशियां हैं BEB और IE, और ये दो आउटपुट राशियां कहलाती हैं VCB और IC। जब इन दो राशियों पर हम ग्राफ खींचेंगे इधर के एक राशि को कांस्टेंट करके, तो वो कहलाएगा इनपुट सर्किट, और जब ये आउटपुट की दोनों राशियों पर ग्राफ खींचेंगे इनपुट की एक राशि को कांस्टेंट करके, तो वो कहलाएगा आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। और इनपुट करंट और आउटपुट करंट जब इन दोनों में ग्राफ खींचा जाएगा एक राशि को कांस्टेंट करके, तो वो कहलाएगा हमारा करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। देन सी first, input characteristics. Input characteristics are obtained between input current and input voltage with constant output voltage. First, keep the voltage VCB constant and vary the input voltage BEV for different point. Then at each point record the input current IE value. Repeat the same process at different output voltage level. Now with these values we need to plot the graph between IE and VEB parameters. The equation to calculate the input resistance Rin value is given below. Input resistance मतलब voltage upon current. तो input रेजिस्टेंस मतलब ये Rin, तो Rin बराबर हो जाएगा आपका VEB upon IE when BCB is constant. Now this is the characteristics curve. Here this is VEB and this is IE. जैसे जैसे हम वोल्टेज बिटवीन एमीटर एंड बेस वेरी करते जाते हैं, वैसे वैसे करंट भी जो है वो वेरी हो रही है। फर्स्ट हमने BCB यानी वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस 0 रखा हुआ है, तो आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो है वो इधर पर इस टाइप से आएगा। फिर हमने BCB को 2 वोल्ट पर कांस्टेंट कर दिया है, VEB को वेरी करते जा रहे हैं और IE को नोट करेंगे, तो ये ग्राफ हमारा इधर आएगा। जैसे जैसे हम VCB का मान बढ़ाते जाएंगे ग्राफ जो है वो आगे बाहर की तरफ आते जाएंगे। इस ग्राफ से हम इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। किसी भी एक ग्राफ पर 2 पॉइंट आप सिलेक्ट कर लीजिए और उन 2 पॉइंट पर जहां ये ग्राफ कर कट करेंगे उससे हम यहाँ पर ड्रॉप डाल देंगे। तो इस तरह से VEB की वैल्यू क्या है उसको निकाल लेंगे, और IE हमने क्या रखा हुआ है, इन दोनों को का रेशो निकाल करके हम इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस मोड are obtained between output current and output voltage with constant input current. First, keep the emitter current constant and vary the VCB value for different points. Now, record the IC value at each point. Repeat the same process at different IE values. Finally, we need to draw the plot between VCB and IC at constant IE. The equation to calculate the output resistance value is given below. The output resistance are out मतलब output voltage upon output current. Output voltage मतलब VCB upon IC when IE is constant. Now we see the curve. This is VCB
यानी वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस. दिस इज कलेक्टर करंट IC. हियर फर्स्ट हमने IE को जो है आउटपुट करंट जो है उसको हमने इनपुट करंट IE जो है उसको हमने 0 पर कांस्टेंट रखा हुआ है और BCB को बढ़ाते जाएंगे और IC को नोट करते जाएंगे. तो इस टाइप का ग्राफ जो है हमें प्राप्त होगा. पहले वोल्टेज के साथ करंट बढ़ेगी और फिर ये लगभग सैचुरेटेड पोजीशन में आ जाएगी. फिर इनपुट करंट IE जो है उसको हमने ज़्यादा मिली एम्पियर पर यानी से 5 मिली एम्पियर पर कांस्टेंट किया है तो ये ग्राफ इसके ऊपर आ जाएगा. और IE का मान बढ़ा देंगे तो ये और उसके ऊपर आता जाएगा. IE का मान और बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ और उसके ऊपर आ जाएगा. और इस तरह से IE का मान जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे ग्राफ जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाएगा. मतलब ये ग्राफ जो है वो जैसे जैसे IE का मान बढ़ाएंगे सैचुरेशन करंट जो है इसकी बढ़ते जा रही है. आप ग्राफ पर देख रहे हैं तो ये ऊपर साइड्स के जो है ग्राफ आते जाएंगे. ये इस ग्राफ से हम कोई भी एक ग्राफ को या एक कर्व को सिलेक्ट करके IC की वैल्यू जो है वो 2 कांस्टेंट पॉइंट्स ले लेते हैं और उनसे फिर ड्रॉप डालते हैं और फिर आउटपुट रेजिस्टेंस जैसा कि आपने देखा आउटपुट रेजिस्टेंस VCB अपॉन IC की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं. तो वो हो जाता है हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस. नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज current transfer characteristics. The current transfer characteristics of common base mode are obtained between emitter current and collector current IC with constant collector base voltage VCB. मतलब आउटपुट करंट और इनपुट करंट पर जो ग्राफ खींचेंगे वो हमारा कहलाएगा करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक. फर्स्ट कीप द कलेक्टर बेस वोल्टेज VCB कांस्टेंट एंड वेरी द एमिटर करंट वैल्यू for different points. Now record the IC value at each point. और हम VCB को जो है वो कांस्टेंट कर देते हैं और IE और IC को जो है वो वेरी करके हम नोट करते जाने हैं. यानी वेरी हमको किसको करना है IE को इनपुट करंट को और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट करंट जो है हम नोट करते जाएंगे. फिर इसी तरह से ये प्रोसेस रिपीट करते हैं और ग्राफ खींच लेते हैं. इस ग्राफ से हम करंट गेन को जो है वो कैलकुलेट करते हैं. करंट गेन को हम यहाँ पर अल्फ़ा से डिनोट कर रहे हैं और अल्फ़ा इज इक्वल टू है हमारा चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट यानी डेल IC अपॉन डेल IE. अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल IC अपॉन डेल IE व्हेन VCB is constant. Now see from the curve, this is IC and this is IE and this is IC. IC means output current और IE मतलब input current. तो जैसे जैसे हमने यहाँ पर जो है VCB कांस्टेंट किया है यदि हम IE को मतलब इनपुट करंट को बढ़ाते हैं तो आउटपुट करंट भी उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो बढ़ते जाती है. इनपुट करंट को हम बढ़ाएंगे तो आउटपुट करंट जो है वो बढ़ते जाती है. अब यहाँ पर हमें करंट गेन कैलकुलेट करने के लिए कोई भी 2 पॉइंट जो है यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे Y एक्सिस पर मतलब IC पर. इसके बाद वो 2 पॉइंट्स जो ग्राफ पर जहाँ पर कट करेंगे उससे हम नीचे ड्रॉप डाल देंगे. तो इन दोनों राशियों का जो अंतर होगा वो डेल IC होगा और इन दोनों राशियों का जो अंतर होगा वो डेल IE होगा. तो अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल IC मतलब चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन एमिटर करंट. इन दोनों के रेशियो से हम करंट गेन जो है कॉमन बेस मोड में हम करंट गेन को जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं. नाउ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ NPN ट्रांजिस्टर. एडवांटेज widely preferred for use because the mobility of electron is higher than the mobility of holes. Second, performance level are higher when compared to PNP transistor. NPN is most suitable for negative grounding system. NPN type transistor has fast frequency response than PNP type due to fast electron mobility. Common emitter configuration is most widely used transistors. Then what are disadvantages?
Switching time of NPN is comparatively more. इसको स्विच करने के लिए ज़्यादा समय लगता है, स्विचिंग टाइम इसका ज़्यादा होता है. दे आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू PNP. NPN टाइप ट्रांजिस्टर जो है वो PNP टाइप ट्रांजिस्टर की अपेक्षा थोड़ा सा महंगा भी होता है, तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं. नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ PNP टाइप ट्रांजिस्टर? They are used in switching applications. They are used in amplifying circuit. They are used in Darlington pair circuit to amplify peak signals. Used in the applications where there is a need to sink a current. Used in some classic amplifier circuit such as push-pull amplifier circuit. Used in temperature sensor. Used in very high frequency application. Used in logarithmic converters. So, here the video is completed. और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ. प्रैक्टिकल में आप लोग बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं जो कि इस वीडियो को देखने से आपको वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे. सर्किट कैसे बनाना है, कनेक्शन कैसे करना है और बाकी सारे जो कन्फ्यूजन्स है वो भी इस वीडियो में को देखने से आपके दूर हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिकल को कर पाएंगे और थ्योरी में भी इसको बहुत अच्छे से लिख सकेंगे. सो थैंक यू वेरी मच.